COPD के lectures में as we have done the chronic bronchitis, so next is emphysema. Okay, emphysema, we know that the pathogenesis or all the inflammation or pathogenesis actually occurring in the respiratory zone. ठीक है, respiratory zone में respiratory bronchiole, alveolar ducts, alveolar sacs और alveolus में. ठीक. So what's the definition of emphysema? It's a permanent and irreversible enlargement of all parts of the respiratory unit, जिसमें respiratory bronchioles, ducts और alveoli है. ठीक है, उसमें irreversible enlargement होती है and और permanent damage होती है. Fifth leading cause of morbidity and mortality, and it occurs mostly in heavy smokers, in women, in African Americans. Causes, दो most common causes हैं. Smoking cigarettes is the most common cause. Another is alpha-1 antitrypsin deficiency, either acquired or functional deficiency or maybe genetic. टाइप्स कौन सी हैं हमारी एम्फाइसीमा के? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, दीज आर सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा एंड पैन एसिनार एम्फाइसीमा. On the basis of the anatomical locations, they involved in the lung and the cause as well. ठीक, जैसे कि सेंट्री एसिनार से इस तरह आप याद कर सकते हैं कि सेंट्री के सी की जगह एस अगर आप लगा दें, ठीक है, तो सेंट्री एसिनार इन्वॉल्व्स दी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनस. पहली तो बात, सुपीरियर पार्ट ऑफ एसिनस और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनस. तो सेंट्री एसिनार सुपीरियर पार्ट ऑफ एसिनस. स्पीयर्स एल्वुलस देन एस. ठीक, most common affects apical segment of upper lobe, तो superior segment of upper lobe या फिर superior lobe. ठीक है, S for central acinar, S for superior part of acinus, S for sparing alveolus, S for superior segment of upper lobe or superior lobe. ठीक है, and it is associated with the heavy smokers, तो again S. ठीक है, smokers. Now it is associated with the chronic bronchitis, inflammation and black pigmentation of the lung. Pan acinar actually involves the lower lobe and or not the lower lobe but the whole acinus. जितने भी respiratory zone में structures हैं, pan means whole, so the whole structure is involved, which include the alveolus, और ये ascending fashion में involve करता है. ठीक है, लाइक पहले सबसे पहले alveolus को involve करेगा, then alveolar ducts, then respiratory bronchioles, ascending. ठीक है, whole acinus distal to terminal bronchiole is involved, affect the lower lobe, most severe at the bases, associated with the alpha-1 antitrypsin deficiency. Other types are paraseptal, which is also called as distal acinar. ठीक है, paraseptal या distal acinar से ही नाम पता चल रहा है that it is associated with the distal region or septal margins of the lobules, and it is associated with the liver cirrhosis, spontaneous pneumothorax, interstitial. ठीक है, name indicate the connective tissue stroma is involved, so it refers to the entrance of air into the connective tissue stroma of mediastinum or subcutaneous tissue. ठीक है, seen sudden inhalation if irritant cases, artificial ventilation, children with the whooping cough and bronchitis or foreign body obstruction. In these certain cases it is seen. See, now another last cause is the bullous emphysema. Bullae blebs are formed in the lungs. Large subpleural blebs फॉर्म हो जाती हैं. ठीक है, ब्लेब्स आर क्या हैं? वही स्पेसेस मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड डिस्टेंडेड स्टेट में होती हैं. ठीक है, ये स्पेसेस हैं. इट अकर नियर द एपिक्स, समटाइम इन रिलेशन टू ओल्ड टीबी, क्योंकि हमें पता है कि जब रिकरेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो अपर सेगमेंट ऑफ द लंग को इन्वॉल्व करता है, तो इट अकर नियर द एपिक्स. कैन गिव राइज टू न्यूमोथोरिक्स व्हेन द बुल्लाए आर रप्चर्ड. पैथोजेनेसिस क्या है? हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, फिर से करते हैं. एम्फाइसेमा और कॉल्ड पिंक पफर्स. इनमें क्या होता है कि दो मोस्ट कॉमन कॉजेज है, सिगरेट स्मोक या फिर alpha-1 antitrypsin deficiency. If alpha-1 antitrypsin deficiency is there, it cannot, so we are unable to destroy the proteases. Proteases अपना काम करेंगे और elastic tissue को destroy करेंगे. So it decreases the elastic recoil. Elastic recoil is decreased, it increases the lung compliance. Lung compliance is increased, lead to decreased ventilation. ठीक है, ventilation decrease होगी. And
it also damages the capillary bed. If capillary bed is damaged, it decreases the perfusion. Now ventilation and perfusion both are matchly or proportionally decrease that lead to matched VQ ventilation perfusion defect. ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे पास हाइपोक्सिया कॉज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वेंटिलेशन भी उतनी डिक्रीज है जितनी परफ्यूजन डिक्रीज है. रिलेटिवली वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंटिल लेट स्टेज. देन इंक्रीजेज द, जो लंग कंप्लाइंस हमारी इंक्रीज हुई है, इट इंक्रीजेज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग. नॉर्मली हमारी लंग्स में कंप्लाइंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इलास्टिक रिकॉइल की वजह से एक पैसिव एक्सपायरेशन हम करते हैं और ब्रीथिंग के लिए हमें वर्क इतना रिक्वायर्ड ही नहीं होता, क्योंकि वो एक पैसिव रिस्पॉन्स होता है हमारे लंग्स का, वो खुद ही रिकॉइल करता है और एयर को बाहर एक्सपेल करता है. अगर वो खुद नहीं कर रहा तो हमारी जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है हमें सेल्फ करना पड़ेगा एक्टिवली बाय यूजिंग आवर मसल्स, ठीक है ना, एक्सेसरी मसल्स को यूटिलाइज करके यूज़ करके. तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज, इट लीड टू डिस्निया. डिस्निया क्यों होगी? बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज. कैसे होता क्या है कि हम जब वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होती है, एक्सेसरी मसल्स हम यूज़ करते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड्स, क्लेनी मसल्स और इंटरकॉस्टल एक्स्ट्राकॉस्टल मसल्स, और ये सब डायफ्राम में हमारा इतना जो है उसका इतना लोड हो जाता है तो उनकी वीकनिंग हो जाती है, ठीक है, और डायफ्राम भी फ्लैटन हो जाता है. तो उसका भी एक जो अपना एक रिकॉइल मैकेनिज्म है एक्सपायरेशन के लिए, वो भी नहीं होता. तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है, दैट लीड टू डिस्निया, डिफिकल्टी हो जाती है हमें ब्रीदिंग के लिए, ठीक है ना. एंड कैकेक्सिया, मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज़. हार्ट डिजीज़ हमें पता है इट लीड टू हाइपोक्सिया, लीड टू वेसोकंस्ट्रिक्शन पल्मोनरी एंड दैट लीड टू left ventricular increase, it decreases the left ventricular cardiac output that lead to right side heart failure and cor pulmonale. अच्छा, अब डिस्ट्रक्शन हुई है कैपिलरी बेड की, ठीक है, तो ऑब्वियसली कैपिलरी बेड में ही हमारी डिफ्यूजन होती है, सो DLCO इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड. जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता COPD कॉज क्या है तो हम DLCO करते हैं, ठीक है. DLCO is normal in the chronic bronchitis and it is decreased in the emphysema. chronic bronchitis में कैपिलरी बेड ही डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है, उस लेवल पे है ही नहीं डैमेज इज अकरिंग और हाइपर सिक्रीशन और ऑब्स्ट्रक्शन इज अकरिंग एट द ब्रोंकाई लेवल, तो डिस्ट्रक्शन नहीं है. सो DLCO इज नॉर्मल इन द chronic bronchitis, डिक्रीज इन द emphysema. एयर ट्रैपिंग ऑन एक्सपायरेशन, alveolar detachment की वजह से एयर इज इट्स ट्रैप्ड ऑन एक्सपायरेशन एंड वी कॉज, हम पर स्लिप करते हैं ब्रीथिंग करें ताकि हम उसको एक्सपायर कर सकें, ठीक है. इट इंक्रीजेज द एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, एयर ट्रैप है तो एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज इंक्रीज, लीड टू इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, इंक्रीज TLC, इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी, लीड टू अ बैरल चेस्ट, ठीक. पैथोजेनेसिस क्या है? इंक्रीज कंप्लायंस एंड डिक्रीज इलास्टिसिटी. दो मैकेनिज्म्स हैं, increase compliance and decrease elasticity, increase compliance and decrease elasticity. There is an imbalance between elastase and anti-elastases, जैसे कि alpha-1 antitrypsin deficiency में, and there is imbalance between oxidants, free radicals and antioxidant like glutathione mechanism, ठीक है. इन दो पैथोजेनेसिस हमारे पास. दिस alpha-1 antitrypsin में क्या है? देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन इलास्टेज एंड एंटी इलास्टेज. और स्मोकिंग में क्या है? देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीडेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. सो इलास्टेज एंड ऑक्सीडेंट्स ड्राइव फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. नेट इफेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू. Normally, the lung contains a healthy complement of antioxidants, superoxide dismutase, glutathione, that keep oxidative damage to a minimum. ठीक है. अब स्मोकिंग में क्या होगी? सिगरेट स्मोक इज कीमोटैक्टिक टू न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट होंगे और रिलीज करेंगे फ्री रेडिकल्स एंड इलास्टेजेस, एंड दीज इलास्टेजेस एंड फ्री रेडिकल्स इनएक्टिवेट द alpha-1 antitrypsin, ठीक है, अगर वो नॉर्मल भी है इन केस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, एंड एंटीऑक्सीडेंट को भी वो इनएक्टिवेट करेंगे. दैट प्रोड्यूसेस अ फंक्शनल और एक्वायर्ड alpha-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, ठीक है. तो अल्टीमेटली alpha-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी ही वर्क नहीं, वो डिफिशिएंसी है, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड लीड टू इलास्टिक टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड थस एम्फाइसेमा. सो टोबैको, निकोटीन, इट इज अ कीमो अट्रैक्टेंट, न्यूट्रोफिल्स को एग्रीगेट करेंगे एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या बनाएंगी? इंटरल्यूकिन 8,
leukotriene B4, TNF, tumor necrosis factor. These are also chemoattractant for the neutrophils. Inactivation of antiproteases increase neutrophil elastase itself, and congenital अगर alpha 1 antitrypsin deficiency हो तो वो एक ओवर राइड कर लेता है and causes tissue damage. ठीक, ओके. सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की अगर हम बात करें, द नेक्स्ट कॉज विच कैन बी एक्वायर्ड एंड विच कैन बी अ जेनेटिक वन. जेनेटिक उसमें एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, डिसऑर्डर है, और इसमें हमारे पास जो है 4 इसके कॉम्बिनेशन या जीन्स के हो सकते हैं, लाइक M. If the M mutation or genetic deficiency is there, it is normal. S is intermediate deficiency. Z is a moderate decrease. Null means absence. There is no alpha 1 antitrypsin. Okay, so the combinations are MM, MS, and Z, and ZZ. MS causes a mild deficiency, and MZ is severe pan-acinar emphysema. Neutrophils, the principal source of cellular proteases, are normally sequestered in the peripheral capillaries, including those in the lung, and a few gain access to the alveolar spaces. Any stimulus that increases either the number of leukocytes in the lung or release of their protease containing granules increases the proteolytic activity. So with the low levels of the serum, alpha 1 antitrypsin elastic tissue destruction is unchecked and emphysema results. ठीक है. नॉर्मल फंक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू क्या है? फाइबर्स अटैच टू द आउटसाइड वॉल ऑफ द स्मॉल एयरवेज. Fibers apply radical traction to keep the airway lumens open. So destruction of the elastic tissue causes the loss of radial traction and small airways collapse, particularly on expiration. हमें पता है कि जो इलास्टिक रिकॉइल है that is on 2 factors. ठीक है. Most 2/3 is contributed by surface tension and 1/3 is contributed by elastic fibers. अब elastic fibers डैमेज हैं, surface tension रोल प्ले करेगी स्मॉल एयरवेज को कोलैप्स करने में, पर्टिकुलरली इन एक्सपायरेशन. हाउ वी नो दैट? जब एरिया स्मॉल होता है तो सर्फेक्टेंट कंसनट्रेट हो जाती है, ठीक है, और एरिया स्मॉल कब होगी? ऑन एक्सपायरेशन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस इज एक्सपायरिंग. तो एल्विलाई हमारे या फिर स्मॉल एयरवेज वो स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है, एंड दैट लीड टू obstruction upon expiration particularly. Since small airways are normally tethered by elastic recoil of the lung parenchyma, the loss of elastic tissue in the walls of the alveoli that surround the respiratory bronchioles reduces the radial traction. This is the summary of the mechanism, and that causes the respiratory bronchioles to collapse during expiration. और क्या होगा? गॉबलेट सेल मेटाप्लेजिया विद द म्यूकस प्लगिंग ऑफ द ल्यूमेन, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करेगी. इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द बॉल्स विद द न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स and CD4 and CD8 cells. थिकनिंग ऑफ द ब्रोंकियल वॉल ड्यू टू द स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी एंड पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस. ठीक है, जिसमें हमारे CD4 T हेल्पर 17 सेल्स भी हेल्प करते हैं. साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर ट्रैपिंग इन एम्फाइसेमा, वी नो दैट इट इज द रेस्पिरेटरी जोन. ठीक है, distal to the terminal bronchiole at its junction with the respiratory bronchiole and all part of the respiratory unit. Morphology क्या है? On gross examination, microscopic examination, on gross, the lung is voluminous, and due to the voluminous hyperinflation of the lung, it hides the heart, and it usually involves the upper 2/3. Large alveoli मिलेंगी on cut section of the formalin inflated lung. Or in microscopic examination, we'll find large alveoli separated by thin septa with focal centri-acinar fibrosis on the late stage or in the severe cases. Or capillary bed is decreased because it is destroyed. Advanced condition, blebs are also formed. ठीक है, and inflammatory changes भी मिलेंगी हमें on microscopic examination. Clinical findings क्या मिलेंगे? Dyspnea. Dyspnea on the other hand, chronic bronchitis में एक तो mild है और late stage में होती है. डिस्निया इन द एम्फाइसेमा अर्ली स्टेजेस में होगी और सीवियर है. ठीक है ना, डिस्निया होगी क्यों? वी नो दैट. ठीक है, कैकेक्सिया होगी, बहुत ज़्यादा हमें एक्सपायर करने के लिए हमने जो मसल्स यूज़ किए हैं दैट आर नाउ फटिग. ठीक है, और डायफिटिन होगी तो उसके लिए वर्क ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज एंड दैट लीड टू डिस्निया. ठीक है, जिसकी वजह से एक पोजीशन पेशेंट एक्वायर करता है टू कंपनसेट. जैसे अ ट्राइपॉड पोजीशन, दिस इज द पोजीशन the patient acquire to breathe because of dyspnea. Sometimes cough occur actually due to the small airway obstruction. ठीक है, और mild cough है. Wheezing because of obstruction. If severe, it progresses to weight loss. Hyperventilation causes tachypnea, and
increases the respiratory rate. ठीक है. Diminish breath sounds and vesicular breath sounds with prolonged expiratory phase more than 6 seconds. Also, there is hyperresonance over lungs because of hyperinflation with the air, and cardiac dullness is recorded or it is reduced or even absent. ठीक. अच्छा, तो लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरम प्रोटीज इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, प्रोटीएसेस या प्रोटीन्स जो हमारी हैं वो उसकी हम पीक चेक करते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा. तो जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है दैट इज़ एन अल्फ़ा प्रोटीन. ठीक है, सो नो अल्फ़ा ग्लोबुलिन विल बी देयर, नो अल्फ़ा ग्लोबुलिन पीक विल बी देयर. लिवर बायोप्सी में हमें पर आयोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव पिंक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे इन द हेपेटोसाइट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन. ठीक है, जो हमारी बन रही है. एंड फाइब्रोसिस और सिरोसिस ऑल्सो सी इन द लिवर बायोप्सी. सीरम में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो डिफिशियंसी की वजह से सीरम लेवल इज डिक्रीज एंड सीरम अमाइनो ट्रांसफरेसिस इज इंक्रीज. ए ग्रेडियंट इज वाइडेंड, DLCO is decrease. ABGs हाइपोक्सीमिया लेट ड्यूरिंग डिजीज़, अदरवाइज हाइपोक्सीमिया नहीं होगी बिकॉज जो मिसमैच है VQ वो मैच्ड VQ डिक्रीज है. ठीक है ना, तो दैट डज नॉट लीड टू हाइपोक्सीमिया. इन द लेट स्टेज इट कैन कॉज हाइपोक्सीमिया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. ठीक, ड्यू टू द हाइपर वेंटिलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं ड्यू टू द हाइपर वेंटिलेशन. टिकैप्निया लीड टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मे बी नॉर्मल एट रेस्ट. ठीक है, क्योंकि वो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जब इंक्रीज़ होगी तब वो हाइपर वेंटिलेशन हम करेंगे. ठीक. अच्छा, चेस्ट एक्सरे में लंग फील्ड आर लेस डेंस ड्यू टू द एयर ट्रैपिंग. इंक्रीज AP डायमीटर, इंक्रीजेज रेजिडुअल वॉल्यूम. हार्ट इज मोर वर्टिकली ओरिएंटेड. ठीक है, ड्यू टू द हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स. सो हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज द रेजिडुअल वॉल्यूम, इट इंक्रीजेज द टोटल लंग कैपेसिटी and it pushes the spleen and liver and gives falsely enlarged organs. ठीक है. अच्छा, आते हैं AA gradient पे. What is AA gradient? The capital A is for the alveolar pressure of the gases or oxygen, and small a indicates ABGs or arterial pressure. ठीक है, that is widened. Actually DLCO और AA gradient दो इस तरह के टेस्ट हैं जब हमें मिक्स डिसऑर्डर्स मिले रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में या फिर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव में, COPDs में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फाइसीमा को डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, जो हमें नॉर्मल स्पायरोमीट्री के उस फंक्शन से या फिर उनकी वैल्यूज से नहीं पता चल रहा होता है. आइदर इट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, और इवन इन द सम रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स हमें उनमें डिस्टिंग्विश करना हो तो A ग्रेडियंट और DLCO हम टेस्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि DLCO इज़ नॉर्मल इन द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिक्रीज इन द एम्फाइसेमा. A ग्रेडियंट भी नॉर्मल है. A ग्रेडियंट शो क्या कर रहा है? ठीक है, इट इज़ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है ये एल्विलाई और ब्लड में. तो डिफ्यूजन ऑब्वियसली अगर नॉर्मल हो ये गैसेस की एट दिस लेवल तो प्रेशर नॉर्मल एक डिफरेंस रहेगा. ठीक है ना, जैसे कि एल्विलर प्रेशर हमारे पास 105 होता है और आर्टीरियल प्रेशर इज़ 100, तो डिफरेंस इज़ 5 mmHg. नॉर्मली 5 to 15 mmHg डिफरेंस है. अगर डिस्ट्रक्शन है कैपिलरी बेड पे तो A ग्रेडियंट भी वाइडन होगी. ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ लेस एफिशिएंट डिफ्यूजन. और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन है, कैपिलरी बेड इज़ नॉर्मल, दैट्स वाई DLCO भी वहाँ पे नॉर्मल है और A ग्रेडियंट भी नॉर्मल है. ठीक है, सो एल्विलर आर्टीरियल ग्रेडियंट इसे कहते हैं AA ग्रेडियंट, जिसमें हम डिफरेंस निकालते हैं एल्विलर ऑक्सीजन प्रेशर एंड दी आर्टीरियल. जैसे एल्विलर 105, आर्टीरियल इज़ 100, द डिफरेंस इज़ 5 mmHg. हम A ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं? 0.3 को मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम एज से. ठीक है, तो एज वाइज इंक्रीज होती जाती है ये, बिकॉज हमें पता है व्हेन अ पर्सन एजेस द टिश्यूज़ आर गेटिंग डिटोरिएटेड. ठीक है, तो वो नॉर्मल फंक्शन होता है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते, टिश्यू डिटोरिएट होते जाते हैं और डिस्ट्रक्शन होती जाती है. ठीक है, तो इट इंक्रीजेज विद द एज. This is the picture of chest X-ray of emphysemic patient. The AP diameter is increased, the chest is barrel, the diaphragm is flattened, and the heart is more vertically placed. ठीक है ना? This is the CT of the emphysemic patient. The upper one is showing the normal picture of the lung. ठीक है, you can see the bronchial tree.
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोंकियल ट्री इज़ डिस्ट्रॉयड एंड मोर एयर इज़ ट्रैप्ड। पिंक पफर इसे कहते हैं। तो इन शॉर्ट समरी, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, नो साइनोसिस, पर स्लिप ब्रीदिंग, डिस्निया, इनफेक्टिव कफ, हाइपर रेजोनेंस ऑन चेस्ट परकशन, ऑर्थोपनिक, बैरल चेस्ट, exertional dyspnea, prolonged expiratory time, speaks in the short jerky sentences, anxious use of accessory muscles to breathe that causes dyspnea, thin appearance, ठीक है, leads to right sided heart failure। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही सेम जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हमने किया था, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और डिक्रीजेज दी मोटिलिटी और मोबिलिटी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूजेज अ ब्रोंकोडायलेटर्स एंड वी कैन यूज स्टीरॉइड्स to relieve the symptoms, and it can complicate to COPD, squamous cell metaplasia, goblet cell metaplasia, chronic respiratory acidosis, pulmonary hypertension, core pulmonary or recurrent infections।